Hello students, so in this video we'll be discussing very important section, that is section 54, which is for claiming exemptions from capital gains on transfer of a residential house property. So first let's understand who all are the assessees who can claim that exemptions and what all are the conditions and applicability. So first is who can claim the exemption. So an individual or the HUF can claim it. Which specific asset is eligible for exemption? So only in case a residential house property, and that too a long-term residential house property, if that is transferred, then only the exemption from capital gains can be taken, otherwise not. So residential property ही होनी चाहिए आपकी long term जो आप transfer कर रहे हो. Which asset the taxpayer should acquire to get the benefit of exemption? So exemption तभी मिलेगी या तो उसके place पे उसको बेच के the assessee has acquired one residential house property, or in case he is not purchasing it, then he is constructing it, and that should be in India. So exemption तभी मिलेगी जब आप बेचकर एक नई residential property या तो खरीदोगे या फिर बनाओगे. So what is the time limit for acquiring the new asset? So in order to purchase the asset, the time limit is 1 year before the transfer. So अपने पुरानी प्रॉपर्टी बेचने से पहले वाले साल में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है तो, या फिर आपने बेच दिया है, बेचने के अगले 2 साल में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है तो. So this is the condition to acquire the new property. So before the transfer 1 year, after the transfer 2 years. Sometimes what happens, आप खरीद लेते हो प्रॉपर्टी और उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो, ठीक है. और काफी बार क्या होता है, बेचने के बाद असेसी न्यू प्रॉपर्टी खरीदता है. सो इन दिस केस बिफोर द ट्रांसफर इट इज 1 year एंड आफ्टर द ट्रांसफर इट इज 2 years. ये तो होगी आपकी परचेज की कंडीशन. कंस्ट्रक्शन की क्या है, रेजिडेंशियल हाउस शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. ओके, आपको 3 साल के अंदर अंदर जब आपने बेच दिया आपको कंस्ट्रक्ट करना है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सेम आप डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हो बिफोर फाइलिंग द ITR. सो द कंसेप्ट रिगार्डिंग द डिपॉजिट अकाउंट इज एग्जैक्टली सिमिलर कि आप उसमें डिपॉजिट करा दीजिए, आप एग्जेम्पशन ले लीजिए, उसके बाद आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट योर हाउस प्रॉपर्टी और फॉर द परचेज ऑफ एनी न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है. और अगर आप उसको विड्रॉ कराते हो फॉर एनी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्पस, देन व्हाटएवर द एग्जेम्पशन दैट यू हैव अवेल्ड दैट विल बी टेकन बैक. How much amount is to be exempted? So the same investment in the new asset or the capital gains, whichever is lower, वो आपकी exemption limit है. Is it possible to revoke the exemption in a subsequent years? Yes, it is very much possible in case the assessee has transferred the new asset within the period of 3 years of its acquisition. So इसका मतलब जो भी नया वो residential house property खरीदेगा, it should be utilized by him for at least 3 years. And if he is not doing so, then whatever the exemption that he has availed earlier, that would be taken back by the authorities. ठीक है. सो उस केस में जब आप दोबारा से कैलकुलेट करोगे, उस केस में आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी वो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस व्हाटएवर एग्जेम्पशन यू हैव अवेल्ड अंडर सेक्शन 54. जो पहले आपको एग्जेम्पशन मिली थी वो आपकी एग्जेम्पशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाएगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी. कब? 3 साल होने के बाद, ठीक है. सो ये सब आपका एग्रीकल्चरल लैंड की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस. सो देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट under this section is that with effect from assessment year 2021, that is Finance Act 19 has amended section 54 to extend the benefit of exemption in respect of investment made in 2 residential house property. Earlier to that, only investment in one house residential house property was given as an exemption. Now the assessee can invest into 2 residential house property, but the maximum long term capital gain that could be exempted
will be up to rupees 2 crores. It will never exceed 2 crores. ठीक है. सो अगर आपने 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली और वो 2 करोड़ के अंदर अंदर है, तो आप उन 2 पे एंटायरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करा सकते हो. अगर आपकी 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आप उस केस में उसकी लोअर को एग्जेम्प्ट कराओगे, बट अप टू 2 नाउ इट इज अलाउड. अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके, तो आप 2 खरीद सकते हो. ठीक है. एंड दिस इज एन ऑप्शन विच इज गिवन फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द असेसी. सो अगर उसने एक बार भी वो यूज कर लिया, तो उसके बाद वो दोबारा इस सेक्शन को यूज नहीं कर सकता. ठीक है. ये 2 हाउस प्रॉपर्टी वाला. ठीक है. सो इसलिए अगर आप कभी भी अगर ये ऑप्शन ले रहे हो जिसमें आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज खरीद के एग्जेम्पशन ले रहे हो, सो दिस इज फॉर द लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर असेसी. Then other important considerations is the construction of the residential house should be completed within 3 years from the date of transfer. So अगर 3 साल में आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई कंप्लीट, तो आपका एग्जेम्पशन वापस लिया जाएगा. और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इररेलेवेंट. आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेट ऑफ ट्रांसफर असेट क्या है, और उससे 3 साल जोड़ लेने और देखना है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है. ठीक है. There are cases when the construction even can commence before the transfer has taken place. So उसमें कुछ भी नहीं है, आपको हमेशा ड्यूरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल लेनी है. उसके अंदर अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए, चाहे आपके ट्रांसफर से पहले स्टार्ट की हो या ट्रांसफर के बाद स्टार्ट की हो. Case of allotment of flat under the self-financing schemes of DDA or similar schemes of cooperative societies or other institutions is also treated as the construction of house for this purpose. ठीक है. Investment in residential house would not only include the cost of purchase of the house, but it will also include the cost incurred for making the house habitable. So all the costs which you have incurred in order to make that house a living place, that will be allowed as a cost of acquisition for that particular cost of investment for that particular residential house. Then the holding of legal title is not necessary. So जरूरी नहीं है कि सारी legal title आप पे ट्रांसफर हो जाए. अगर आपने पूरा consideration पे कर दिया या फिर आपने substantial portion of that sale consideration you have paid off, then you are available to get an exemption. जरूरी नहीं है कि प्रॉपर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होके आपके पास एक लीगल टाइटल भी आए. अगर आप सब कुछ आप पूरा अमाउंट पे कर चुके हो या सब्सटेंशियल पोर्शन अमाउंट आप पे कर चुके हो, तो चाहे रजिस्ट्रेशन डीड बाद में भी हो, डजंट मैटर, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी. Then purchase of tenancy rights on a building does not amount to purchase of a house property, and in that case एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. टेनेंसी राइट का नहीं मिलेगा. आपको एक प्रॉपर खरीदनी है प्रॉपर्टी या फिर आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करनी है. A taxpayer may sell 2 house properties and he may purchase 1 house property for the purpose of availing the exemption. चाहे तो वो 2 हाउस खरीद के भी, चाहे कितने भी हाउस खरीद के वो बेचे, कोई उसमें लिमिट नहीं है. बट अगर आप परचेज कर रहे हो 1 हाउस प्रॉपर्टी उसके बिहाफ पे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आर एग्जेम्प्टेड. और अगर 2 कर रहे हो तो अप टू 2 करोड़ इट इज exempted. Now next is the example through which we'll understand this concept more clearly. So Mr. X sells a household property, a residential house property situated in Delhi for rupees 13 lakhs. और उसकी stamp duty value है 15 lakh और expenses of transfer है 10,000 on July 10, 2019. So उसने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दिल्ली की बेच दी हमारे प्रीवियस ईयर 1920 में, which was purchased by him in 2004 for rupees 90,000. Now what he has done, on 20th December 2019 he purchased a residential house property in Noida for rupees 15 lakhs, and that Noida property is transferred on December 25, 2021. Stamp duty value is rupees 23 lakhs 20,000 for rupees 22 lakh 90,000. हमें इसके कैपिटल गेन्स निकालने हैं. So before starting with this question, we'll quickly understand about this concept, that is stamp duty. So stamp duty हमेशा चेक करना if its value at the date of transfer
if it is exceeding 105% of the actual sales consideration, कैलकुलेट करना, अगर वो 105% से ज्यादा है, इसका मतलब हम स्टैम्प ड्यूटी को लेंगे एज आर सेल्स कंसिडरेशन, और अगर वो कम है तो हम जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है वो लेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर स्टैम्प ड्यूटी क्वेश्चन में है तो 105% का कंसेप्ट आएगा। इफ इट इज मोर देन वी हैव टू टेक द स्टैम्प ड्यूटी। और जो स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी एक्विजिशन के टाइम पे जो वैल्यू होती है वो हम कभी भी कंसिडर नहीं करते। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ऑलवेज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द सेल कंसिडरेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इसका कंसेप्ट नहीं आएगा, अगर आता है तो इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू। सो पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर 1920 का देखते हैं, सेल कंसिडरेशन। अब इसमें सेल कंसिडरेशन है 13 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 15 लाख। सो ये डेफिनेटली 105% से ज्यादा है। जस्ट कैलकुलेटेड, कैलकुलेटर खोलो अपना, 13 लाख को 105% से मल्टीप्लाई करो, इट इज 13,65,000 और कितनी वैल्यू है 15 लाख। सो डेफिनेटली 15 लाख आएगी अब। ठीक है, सो इसमें 15 लाख आ गई आपकी स्टैम्प ड्यूटी। खर्चा कितना हुआ 10,000। नेट सेल्स कंसिडरेशन 14,90,000। नाउ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदी थी 90,000 में। कब खरीदी थी, प्रीवियस ईयर 4 और 5, तो उसका आपका CII आता है 113 एंड ईयर ऑफ ट्रांसफर का आता है 289। आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया, आपका बैलेंस आ गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आपने क्या न्यू प्रॉपर्टी खरीदी है? हाँ, उसने खरीदी है न्यू प्रॉपर्टी। और कितने की खरीदी है नोएडा में? उसने खरीदी है 15 लाख की। पर आपकी एग्जेम्पशन क्या कहती है, कैपिटल गेन और द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर। सो इन दिस केस इट इज लोअर, सो इट इज अलाउड एज एन एग्जेम्पशन। सो nil is your capital gain in respect of your previous year 1920. But 3 साल कब कंप्लीट होते हैं इसके? 3 साल इसके कंप्लीट होंगे असेसमेंट ईयर 2023-24 में। बट उसने क्या किया है, उसने 3 साल से पहले वो प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर दी है। सो अगर उसने वो सेल ऑफ कर दी है तो अब हमें दोबारा से उसके कैपिटल गेन निकालने पड़ेंगे। और सेल कंसिडरेशन तो उसने जितने में बेची है दैट इज 15 लाख। इसमें आपकी स्टैम्प ड्यूटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? देखो, आपने बेची कितने में है 15 लाख में, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसकी 23 लाख, सॉरी आपने बेची कितनी है 22,90,000 में, और स्टैम्प ड्यूटी है उसकी 23,20,000 में। तो इसका 105% निकाल के देखो, 22,90,000 का 105% आता है आपका 24,04,500। तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी उससे कम है, इसलिए हम स्टैम्प ड्यूटी को ना लेकर क्या करेंगे, full value consideration that is 22,90,000. So I'm really sorry, यहाँ पे मैंने इसको गलत लिख दिया, this is 22,90,000, this is a typo here. So यहाँ पे आएगा आपका 22,90,000, selling expenses आप 10,000 माइनस कर दोगे, यहाँ पे आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। उसमें से आप क्या करोगे, आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सो जो भी आपकी 22,90,000 में से 10,000 गए, आपके आए 22,80,000। उसमें से अब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कहता है कि आपने जो इनिशियली एक्वायर करी थी एक्चुअल में 15 लाख की करी थी, बट आप एग्जेम्पशन ऑलरेडी कितना ले चुके हो अपने प्रीवियस ईयर 1920 में, आप एग्जेम्पशन ले चुके हो 12,59,823 का, राइट? तो वो आपने जो एग्जेम्पशन लिया था वो अब हमसे आपसे रिवॉक कर रहे हैं, तो इसलिए अब आपकी कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये हो गई है, दैट इज 2,57,629. So this is now your long-term capital gain, which is 20,32,371. So there is an error here. ये please change कर लेना. Let me just change it only. So this is 22,90,000, right? It is 22,90,000. उसमें से subtract किया आपने 10,000 खर्चा लगा है इसका? नहीं, इसका कोई खर्चा नहीं है। I'm really sorry, मैंने ये अपडेट करना भूल गई। So this is nil. So आपका एग्जैक्ट कितना हुआ 22,90,000 का। So अब जब 22,90,000 को आप माइनस करोगे 2,57,629 से, तो 20,32,371 is your capital gain. So you always have to make a calculation like this कि जिस साल आपका यहाँ पे भी आपका चेंज हो जाएगा, this will be previous year 21-22. Okay. So
सो आपका जब 3 साल के अंदर अंदर आपने एक और प्रॉपर्टी को बेच दिया तो उस केस में आपका दोबारा से कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा और जो आपको